الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیریویٹیوز کو کہ ڈیریویٹیوز کیا ہے، ڈیریویٹیوز مارکیٹ کیا ہے اور فائنینشیل ڈیریویٹیوز کیا ہے۔ تو ڈیریویٹیوز کو اگر ہم سمپلی ڈیفائن کریں تو اٹ از اے کنٹریکٹ ٹو بائی اور سیل سم تھنگ ان اے فیوچر ڈیٹ ایٹ اے پرائس وچ از سیٹلڈ ٹوڈے۔ دو انویسٹر یا دو پارٹیز کے درمیان ایک کنٹریکٹ جس میں سیل اینڈ پرچیز آف سم ایسٹس ہو، وہ کنٹریکٹ ایکسپائر ہوگی ایٹ فیوچر ڈیٹ، اور اسی کنٹریکٹ کے لیے جو پرائس سیٹلمنٹ ہے وہ ہوگی ایٹ پریزنٹ ٹوڈے۔ 4 پوائنٹ امپورٹنٹ ہیں ڈیریویٹیوز کنٹریکٹس میں کہ یہ دو انویسٹر کے درمیان ایک کنٹریکٹ ہوگا، وہ کنٹریکٹ فار دا سیل اینڈ پرچیز آف سم تھنگ ہوگا، اور وہ کنٹریکٹ ایکسپائر ہوگا ان فیوچر، اور اسی کنٹریکٹ کے لیے جو پرائس ہے وہ سیٹل ہوگی ٹوڈے۔ ایک چھوٹا سا ایگزامپل، دو پارٹی اے اینڈ پارٹی بی۔ پارٹی اے کو 100 کیرٹ آف گولڈ چاہیے after 3 months at a price of 110,000۔ اسی کے لیے پارٹی بی ایگری ہوتا ہے اور وہ 100 کیرٹ آف گولڈ کو سیل آؤٹ کرتا ہے پارٹی اے کو after 3 months at a price of 110,000۔ لاجک اس کے بیہائنڈ یہ ہے کہ پارٹی اے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ گولڈ کا جو پرائس ہے وہ after 3 months انکریز ہوگا from 110، اس لیے آج وہ کنٹریکٹ میں انٹر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے پارٹی بی کی سوچ یہی ہے کہ جو گولڈ کی پرائس ہے وہ ڈکلائن ہوگی from 110 after 3 months، اسی لیے وہ کنٹریکٹ میں انٹر ہو رہا ہے۔ تو دونوں پارٹی اپنی اپنی ویلیویشن سے فیوچر کو پریڈکٹ کرتا ہے کہ فیوچر میں گولڈ پرائس انکریز ہوگی یا ڈیکریز ہوگی، اور اسی وجہ سے وہ دونوں انٹر ہو رہے ہیں ایک کنٹریکٹ میں جس کو کہتے ہیں ڈیریویٹیوز کنٹریکٹ۔ جرنل کموڈٹی کی اوپر اگر دو انویسٹر کنٹریکٹ سائن کرے تو اس کو ڈیریویٹیوز کنٹریکٹ کہتے ہیں، لیکن اگر دو انویسٹر فائنینشیل انسٹرومنٹ کے اوپر کنٹریکٹ سائن کرے، فائنینشیل انسٹرومنٹ کا مطلب شیئرز، بانڈز، سٹاکس ایٹسٹرا، تو پھر اس قسم کی کنٹریکٹ کو کہتے ہیں فائنینشیل ڈیریویٹیوز۔ فائنینشیل ڈیریویٹیوز یا ڈیریویٹیوز مارکیٹ یہ ایگزسٹ ہوتی ہے فار دی مینیمائزیشن آف رسک ٹو انویسٹر۔ انویسٹر کو موسٹلی انویسٹمنٹ میں ڈیفالٹ یا لاس کا رسک بہت ہائی ہوتا ہے، تو اسی رسک کو مینیمائز کرنے کے لیے ڈیریویٹیوز مارکیٹ مختلف کنٹریکٹ ایشو کر رہے ہیں جس کے اوپر انویسٹر کنٹریکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں اور اپنی رسک کو مینیمائز کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیریویٹیوز کنٹریکٹس میں 4 پوائنٹس بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر فرسٹ، ڈیریویٹیوز مارکیٹ میں یہ پوائنٹ بہت ہی اہم ہے کہ دو انویسٹر کے درمیان ایک کنٹریکٹ ضرور ہوگی۔ دوسری پوائنٹ، وہ کنٹریکٹ ہوگی فار دا سیل اینڈ پرچیز آف سم تھنگ، مطلب کچھ ایسٹس کی سیل اینڈ پرچیز اس میں ضرور ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ، وہ کنٹریکٹ ایکسرسائز ہوگا، میچور ہوگا ان فیوچر ڈیٹ۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اسی کنٹریکٹ کے لیے جو پرائس سیٹلمنٹ ہے وہ ہوگی ٹوڈے۔ تو جس کنٹریکٹ میں بھی یہ 4 پوائنٹس انکلوڈ ہوں گے اسی کنٹریکٹ کو ڈیریویٹیوز کنٹریکٹ کہتے ہیں۔ As the term reflects
that the derivatives contract derive its value from the underlying assets. Derivatives contract अपनी value को underlying asset से ही derive करते हैं. Underlying assets का मतलब वो assets जिनके ऊपर derivatives contract होते हैं या जिनके ऊपर investor contract में enter हो रहे हैं. वो underlying assets या तो commodity हो सकती है, चावल, गंदम वगैरह, या precious metal हो सकती है, गोल्ड, डायमंड, या इंटरेस्ट रेट, या इसके अलावा भी एसेट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है. अब ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क की बुनियाद पर, जिस तरह स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस यही है कि इन्वेस्टर के लिए रिस्क मैनेज कर सके, मिनिमाइज कर सके. तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क डेरिवेटिव्स की 4 मुख्तलिफ टाइप्स हैं. जो पहला नंबर 1 है वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही से डेरिवेटिव्स जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गए तो स्टार्ट ही से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे इन्वेस्टर. इसी वजह से इसको सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स कहते हैं. सिंपलेस्ट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सिंपली दो इन्वेस्टर आपस में एग्री होते हैं फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सम एसेट्स, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगी इन फ्यूचर फॉर द प्राइस विच इज सेटल्ड टुडे. ओल्डेस्ट इसलिए है कि स्टार्ट यही से हुआ था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से. इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू काउंटर पार्टी. जिस तरह हमने डिस्कस किया कि दो इन्वेस्टर या दो पार्टीज के दरमियान ये एक एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट है फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ समथिंग एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्राइस विच इज सेटल्ड टुडे. जो मेन प्रॉब्लम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो ये है कि यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज़्यादा है. मतलब अगर दो इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए एंड एट द मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कोई भी इन्वेस्टर अपनी कॉन्ट्रैक्ट से डिनाई कर गया तो दूसरी इन्वेस्टर के लिए ये डिफॉल्ट होगा, लॉस का सबब बनेगा. क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ना तो एक्सचेंज इन्वॉल्व है, ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो गारंटी ले सके उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए. तो इसी वजह से डिफॉल्ट रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा है. इसी डिफॉल्ट रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव्स की एक दूसरी किस्म, एक दूसरी टाइप जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से याद की जाती है, वो मोस्टली इन्वेस्टर इसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं. ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी दो इन्वेस्टर के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ सम एसेट एट अ फ्यूचर एट अ प्राइस विच इज सेटल्ड टुडे. वही 4 पॉइंट यहाँ पर भी इंक्लूड है. कॉन्ट्रैक्ट है या एन एग्रीमेंट है, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगी एट फ्यूचर, और उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो प्राइस है वो सेटल होगी टुडे. लेकिन उसी डिफॉल्ट रिस्क को कम करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज इन्वॉल्व है, इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व है. मतलब एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो फैसिलिटेट करती है दोनों इन्वेस्टर को. कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो टर्म एंड कंडीशन है वो टर्म एंड कंडीशन ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं बाय द थर्ड पार्टी, बाय द एक्सचेंज और बाय द गारंटर. सिर्फ जो दो इन्वेस्टर है वो क्वांटिटी और प्राइस पे एग्री होते हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म एंड कंडीशन है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होती है. डिफॉल्ट रिस्क यहाँ पर इसलिए मिनिमाइज है क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्टर एट द मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिनाई करे फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट तो उनका थर्ड पार्टी या एक्सचेंज में एक
अकाउंट होता है और वही अकाउंट में एक स्पेसिफिक मार्जिन होता है, तो फिर दूसरी इन्वेस्टर को जो डिफॉल्ट या लॉस का सामना करना पड़े तो वो वही फ्रॉम द इन्वेस्टर ए के अकाउंट से पे करना पड़ेगा। तो इसी वजह से दोनों इन्वेस्टर के अकाउंट होते हैं एक्सचेंज में, तो कोई भी पार्टी डिनाई नहीं कर सकता फ्रॉम दी कंट्रैक्ट। इसी वजह से जो डिफॉल्ट रिस्क है वो यहाँ पर मिनिमाइज हो सकती है, पॉसिबल है या हुई है। इसी कंट्रैक्ट को स्टैंडर्ड ऑफ नेचर या स्टैंडर्डाइज कंट्रैक्ट कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड वे के ऊपर ये कंट्रैक्ट एक्सरसाइज होते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन होते हैं और इन्हीं के ऊपर ये कंट्रैक्ट एक्सरसाइज होते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज कंट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, एक्सचेंज कंट्रैक्ट कम इन प्री डिसाइड फॉर्मेट साइज, ये हमने डिस्कस किया कि जो टर्म एंड कंडीशन है ये प्री डिसाइडेड होते हैं, सिर्फ क्वांटिटी और प्राइस पे दोनों इन्वेस्टर ने एग्री होना है। स्टिल डिफॉल्ट रिस्क मौजूद है, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर एंटर हो जाए एक कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर उसके लिए उसी कॉन्ट्रैक्ट की डिनाई भी पॉसिबल नहीं है, और मतलब उनके 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 साथ चॉइस भी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जा सके या नहीं जा सके, मतलब उनके पास वो ऑप्शन नहीं होता। तो इसी वजह से तीसरी टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कम इन, जिसको कहते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों से मुख्तलिफ है, इसलिए मुख्तलिफ है यहाँ पर एक पार्टी या एक इन्वेस्टर के पास ये राइट होता है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो सकती है, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं हो सकती। वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो राइट्स है वो राइट्स परचेज करता है और उसके लिए पेमेंट करता है दूसरी पार्टी को। वन पार्टी हैज द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल while the other party has the right। सिर्फ एक पार्टी के पास वो राइट होता है कि अगर वो चाहे तो फ्यूचर में वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। अलबत्ता इसी राइट को लेने के लिए या परचेज करने के लिए उसी इन्वेस्टर को पे करना पड़ेगा जो वो राइट्स लेता है। ऑप्शन की दो टाइप है, वन है पुट ऑप्शन और दूसरा है कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन मोस्टली it gave rights not an obligation to sell something। कुछ एसेट्स की सेल आउट के लिए ये एक इन्वेस्टर को राइट्स प्रोवाइड करता है, while call option provide rights to buy something for the investor। लास्ट जो टाइप है डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का वो है स्वैप्स। इट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव्स, क्योंकि यहाँ पर आपने कैश फ्लो के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है। दोनों इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं एट दी कैश फ्लो। जिस तरह स्वैपिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट फॉर फ्लोटिंग वन, दो इन्वेस्टर हैं, एक ने लोन लिया है फिक्स रेट पर, दूसरे ने लोन लिया है फ्लोटिंग रेट पर, तो दोनों आपस में वो एक्सचेंज रेट जो है उनके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। या मोस्टली अगर आपको या किसी इन्वेस्टर को फॉरेन करेंसी चाहिए या दूसरे मुल्क में कुछ फंड चाहिए, अमाउंट चाहिए, वहाँ से वो लोन लेना चाहे, या दूसरा इन्वेस्टर है वो आपकी कंट्री में लोन लेना चाहे, तो इसी तरीके से दोनों के जो इंटरेस्ट रेट है उनके कंट्री का और आपके कंट्री का, तो उन्हीं इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और इसी किस्म की कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं स्वैप्स। स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली नॉट ट्रेडेड एक्सचेंज में इनके ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती। स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज में
ایکسرسائز نہیں ہوتی، اور کیونکہ یہ پرائیویٹ نیگوسیشن پہ ہوتی ہے۔ امید ہے یہ سب آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا۔ تھینک یو۔